अब हम बात कर रहे हैं डॉबर बीच की। डॉबर बीच जैसा कि आप जानते हैं ये मैथ्यू आर्नोल्ड का एक बहुत ही फेमस वर्क है और इट इज ए टाइप ऑफ इलेजी। You must be thinking why it is called elegy, because elegy is often written on the death of some person. Then on whose death this elegy has been composed? So I would like to tell you that Matthew Arnold wrote this elegy on the death of faith. He says that in his age, faith has died, innocence has died, truth has died. This was the reason that he wrote this elegy on the death of faith. ये विश्वास की मौत पर एक लिखी हुई इलेजी है जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। डॉबर बीच आप जानते हैं, बीच कहते हैं समुद्र का किनारा, और डॉबर उस किनारे का नाम है। तो डॉबर बीच आप लोगों को मालूम है, होना चाहिए कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो समुद्र की दूरी है वो बहुत कम है, जिसको हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो वहीं पर इंग्लैंड की साइड में एक आइलैंड है, या यूं कहेंगे एक आइलैंड के पास में एक छोटा सा बीच है जिसको डॉबर बीच कहते हैं। ये जो डॉबर बीच है, in this poem the poet has presented the disordered condition of his time. अपने समय की जो डिसऑर्डर्ड कंडीशन है उसको पोइट यहां पे प्रेजेंट करते। पोइट इसमें अपनी बिलविड से कहते हैं, द पोइट आस्क्स हिज बिलविड दैट दे शुड बी ट्रू in their love to each other, because as far as this world is concerned, it is full of trouble, uncertainty, problems, death, sufferings, pains. But what is the thing that can give happiness, pleasure to human being? It is only the true love. So that's why he gives an advice to his beloved that they both should be true in their love to each other. In the conclusion of this poem, the poet has given very beautiful image of a battlefield. He says that as in the battlefield, the soldiers of two armies are fighting, and they are fighting in darkness. So this is the reason that they don't know whom they are going to kill. Sometimes it happens that the soldiers are killing the soldiers of their own side. So we are just like those soldiers, and this world, it is just like a battlefield, and darkness, it is the darkness of our ignorance, and because of ignorance we are killing to our own relatives, we are killing to our own brothers and sisters. We are running here and there, but we are very much confused. We don't know where we have to go. So this is the reason that the poet, he gives an advice to his beloved that they both should be true in their love to each other, because only this true love can give them peace of mind. Only this true love can give them inner satisfaction in this disordered condition of the world. Clear? देखो, in the very beginning of the poem, the poet has given a very beautiful description of nature. स्टार्टिंग में पोइट ने नेचर का एक बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है। पोइट कह रहे हैं कि द सी इज काम टू नाइट, आज की रात जो समुद्र है ये बिल्कुल शांत है। द टाइड इज फुल, ज्वार जोरों पर है। द मून लाइज फेयर, चंद्रमा का प्रकाश दूर तक फैला हुआ है। अपान द स्ट्रेंड्स, समुद्र के किनारे जो स्थान है वो चंद्रमा के प्रकाश से जगमगा रहे हैं। ऑन द फ्रेंच कोस्ट
जो फ्रांस का समुद्री किनारा है वो द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन, वो प्रकाश से चमकता है, कभी प्रकाश नजर आता है, कभी चला जाता है। अर्थात जब भी क्लाउड्स आते, वेन एवर क्लाउड्स कम बिफोर द मून, द लाइट इज गॉन। वेन देर इज नो क्लाउड बिफोर द मून, देन द लाइट ब्राइटन्स दिस coastal area of France and also of England. The cliffs of England stand. इंग्लैंड की चट्टानें यहाँ पे नजर आ रही हैं, ग्लैम्बरिंग एंड बास्ट, जो चमक रही हैं और विशाल हैं। आउट इन द ट्रंक्वल वे, ऐसा लग रहा है कि किसी शांत घाटी से निकलकर ये चट्टानें आई है। अब पोइट अपनी बिलवेड से कहता है कि दिस इज रियली द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर, सो प्लीज कम एंड सी द ब्यूटी ऑफ नाइट। कम टू द विंडो, खिड़की पर आओ, स्वीट इज द नाइट एयर, देखो आकर इस रात की हवा कितनी मीठी है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, दूर तक बौछारें गिर रही हैं समुद्र की लहरों की। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंस्ड लैंड, समुद्र के किनारे लहरों की बौछारें गिर रही हैं और यहीं पे चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य चंद्रमा से मिल रहा हो। लिसन, हे बिलवेड से कहता है कि सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, तुम जो कंकड़ पत्थर हैं इनके रगड़ की आवाज को सुनो। विच द बेब्स ड्रॉबैक एंड फ्लिंज, जिन कंकड़ पत्थरों को समुद्र की लहरें अंदर ले जाती हैं और फिर बाहर फेंक देती हैं। एट द रिटर्न अप द हाई स्टैंड, जब लहरें लौट के आती हैं तो समुद्र के किनारे जो ऊंचे हैं वहां आकर के कंकड़ फेंक देती हैं। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, ये लहरें चलती हैं, रुकती हैं, फिर चलना शुरू करती हैं। और इन लहरों के चलने से, इन कंकड़ों की रगड़ से एक साउंड क्रिएट होती है, एक म्यूजिक क्रिएट होता है, और ये थोड़ा सा सैड म्यूजिक है। द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, इस संगीत में देर इज ए टच ऑफ सैडनेस इन दिस म्यूजिक विच इज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द waves of the sea. So this is the reason the poet gives a very beautiful description of nature, and he makes an appeal to his beloved that she must come out of her house and she must share and she must also enjoy the beauty of nature. That is really mesmerizing, that is really captivating.